Good morning, everyone. So, today we are going to discuss the chapter number 7th, exercise 7.3. So, you already done three rules of congruency, that is side, angle, and angle, side, as well as you already discussed about the properties of an isosceles triangle, two properties of isosceles that you already discussed. So today we will use the rules of congruency that we are earlier discussed, as well as the properties of isosceles triangle, and with the addition of this we will discuss side rule of congruency. So this side rule of congruency based on the sides of triangles when two triangles are given and we observe that the corresponding sides have a same length, then we can say that these two triangles are congruent by side rule of congruency. इतना आप सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है दैट इज RHS. सो हेयर R stands for right angle, this stands for right angle, this H stands for hypotenuse. अगर हाइपोटेन्यूज है तो अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा भी हम कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल. वेरी गुड. सो दिस इज अ साइड, एनी साइड, इट मे बी अ परपेंडिकुलर और बेस, the adjacent side of the hypotenuse. It may be a base, may be a perpendicular, depend upon the conditions, depend upon the situation, depend upon the diagram also. So right angle, एक आपके पास 90 का एंगल होगा, इसके opposite side we know that is hypotenuse, and one is adjacent side, either a base or a perpendicular. This is known as RHS rule of congruency. जब हम इनके सम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तब आपको क्लियर हो और भी क्लैरिटी हो जाएगी. यस, ये सम हमने कैसे करने हैं, कहाँ पर RHS लगेगा, कहाँ पर SSS रूल लगेगा, कहाँ पर SAS लगेगा, कहाँ पर ASA लगेगा, कहाँ पर एंगल साइड रूल लगेगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द our first sum. The statement of first sum is that triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. अगर BC दोनों का बेस सेम है, ये वाला बेस अगर दोनों का सेम है, इट मीन्स BC तो किसी भी साइड के इक्वल नहीं आएगा. इट मीन्स AB किसके इक्वल होगा, AC के, एंड DB is equal to DC. Good. And vertices A and D are on the same side of BC as seen in the figure. Okay. If AD extended to intersect at B, देखो AD को एक्सटेंड करवाकर B पर इंटरसेक्ट करवा लिया. शो क्या करना है, ट्रायंगल ABD, दिस ट्रायंगल, इसको ना हम कलर करते हैं, जो हमें ट्रायंगल दी हुई है हम इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं. दिस ट्रायंगल ABD, इसको हमने कंग्रुएंट करवाना है विद द ट्रायंगल ACD. हम ACD को कोई और कलर कर लेते हैं, लाइक येलो. हम इसमें येलो कलर कर देते हैं. इन दोनों ट्रायंगल को हमने कंग्रुएंट करवाना है. तो ये और ये AC एंड AB इक्वल आएगी, BD एंड CD इक्वल होगा. हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका. सो लेट्स स्टार्ट विद द
solution, proper solution we have to write here. Firstly, we write the given. This color is not visible as I can clearly see, so we can go with this color. This is very dark color and it is easily visible to you. So हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल DBC. These are isosceles triangles. If these are isosceles triangles, so we can see in triangle ABC, the AB is equal to AC, and in triangle BBC, BD is equal to CD, and AP intersect BC. इसको लिख लो AP इंटरसेक्ट BC. अब हमने टू प्रूफ क्या करवाना है, पहले फर्स्ट पार्ट को हम प्रूफ करवाएंगे. टू प्रूफ going with first part, the triangle A B D congruent to triangle A C D. So इसमें देखो A B, इसका प्रूफ लिखें फर्स्ट का, राइट द प्रूफ ऑफ फर्स्ट. अब इसमें देखो हमारे पास क्या आएगा. Firstly write, after before writing the conditions write जिन जिन ट्रायंगल में हमने काम करना है उनका नाम लिख लेते हैं. ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD. अब हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC. दिस इज गिवन. BD इज इक्वल टू CD. दिस इज ऑल्सो गिवन. देखो दो कंडीशन तो हमने प्रूफ करवा दी. कैन बी से AD कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स. देखो AD ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल में आ रही है. ये देखो ये वाली साइड AD, ये इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है. इट मीन्स ये साइड क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी. सो राइट द रीजन हेयर कॉमन. आपने जब भी इंक्लूडेंसी करनी है रीज़न हमेशा मेंशन करना है. विदाउट रीज़न आप कंग्रुएंसी नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर. सो अब देखो ये तीन कंडीशंस हो गई. अब इन तीन कंडीशंस को देखते हुए इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ सम को. सो भाई कौन कौन सी कंडीशंस हैं. AB इक्वल टू AC साइड है, BD इक्वल टू CD ये भी साइड है, AD ये भी साइड है. कंग्रुएंसी के लिए हमें मिनिमम तीन कंडीशन चाहिए. हमने वो इक्वल प्रूफ करवानी है. वो क्यों इक्वल है उनका रीजन देना है. अगर गिवन में है गिवन लिखेंगे, कोई चीज़ कॉमन है कॉमन लिखेंगे. नहीं तो पहले हम उनको इक्वल प्रूफ करवाएंगे फिर यूज़ करेंगे. इज दैट क्लियर. द ट्रायंगल ABD congruent to the triangle ACD. This is the first part that we have proved. So इस फर्स्ट पार्ट में हमने कोई एंगल जो हमें चाहिए प्रूफ करवाने के लिए वो करना है. So we can say by simplicity this angle, by simplicity this angle 1 is equal to angle 2. So here we write by CPCT angle 1 is equal to angle 2. Clear. Now we prove the second part.
to prove second part the triangle ABP congruent to triangle ACP। अब हम ये प्रूफ करवाएंगे। अब ये प्रूफ कैसे होगा, देखो इसका प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल ABP एंड इन ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो AP हमारा कॉमन आ जाएगा। This AB is equal to AC, this angle 1 is equal to angle 2. So by angle side rule of congruency, these two triangles are also congruent. So अब हम ABP ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी ट्रायंगल बन गई ABP and this is another triangle APC. So we already proved by CPCT this angle 1 is equal to angle 2. So इसका प्रूफ देखो, again we write here for our convenience in triangle ABP and in triangle ACP. So AB is equal to AC. This is given. We know that the triangle ABC is an isosceles. So AB is equal to AC. So angle 1 is equal to angle 2 proved above. Either you write here proved above or you write here proved in first। बाय CPCT हमने ये प्रूफ किया है। देखो बाय चांस हमने CPCT प्रूफ कर लिया, वो यूज हो गया है ना। अगर हम वहाँ पर CPCT नहीं लिखते तो हमें यहाँ पर वो बाय CPCT प्रूफ करवाना पड़ना था। सो AP इज इक्वल टू AP, दैट इज कॉमन। So if this is common and this is given, this is proved above, so ये तो तीन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये आपकी साइड आ गई AB इज इक्वल टू AC, AP भी साइड आ गई, ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया, ये वाला है ना। ये एंगल है, ये साइड है, ये भी साइड है। अब देखो जो आपका एंगल है वो दो साइडों के इन बिटवीन आ रहा है, इंक्लूड आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा बाय SAS रूल ऑफ कंग्रुएंसी ट्रायंगल ABP congruent to triangle ACP. So by CPCT angle, this angle P in triangle APP, say 3 and 4. So angle 3 is equal to angle 4, as well as BP is equal to CP। ये दोनों चीज़ें बाय CPCT से आ जाएंगी। अब थर्ड पार्ट क्या प्रूफ करवाना है थर्ड में, देखें पीछे डायग्राम में पिछली स्टेटमेंट से हमें देखना पड़ेगा
थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करवाना है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D ऑल्सो। प्रूफ थर्ड में हमने करवाना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब देखो ये अगेन दोबारा आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद ये हमारी AP आ गई और ये हमारी BD एंड CD बन गया। दिस इज अवर ओरिजिनल डायग्राम A B P C। So these two angles are equal. These two angles are also equal, है ना। इनको भी हम नाम दे दें, इसको 5 और 6 का नाम दे दें, इसको 1 और 2 का नाम दिया है, इसको 3 और 4 का नाम दिया है। ये आपका पॉइंट है D। यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, D। ये वाला पॉइंट हमारा D पॉइंट है। अब ना ये पार्ट हम विदाउट कंग्रुएंसी करेंगे। थर्ड पार्ट जो है इसका विदाउट कंग्रुएंसी करेंगे। वी नो दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A बाई CPCT proved in first. So angle 1 is equal to angle 2. So AD extended to P and AP intersect BC at P। BC पर इंटरसेक्ट करेंगे P, BC को इंटरसेक्ट करेंगे P पर। नाउ इफ AD बाइसेक्ट्स एंगल A बाय CPCT from first, can I say angle 5 is equal to angle 6? जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करवाया है ट्रायंगल ABD, ये वाली ट्रायंगल, अभी हम कलर चेंज करते हैं उस ट्रायंगल को। ये वाली ट्रायंगल ABD, दिस, ये सारी is congruent to this triangle ACD। अगर इसके congruent है तो बाई CPCT ये दोनों एंगल भी तो इक्वल आएंगे। इतना क्लियर हुआ? अगर आपको इतना क्लियर है सो इट मीन्स ध्यान से देखना, इट मीन्स एंगल 5 एंड ये वाला एंगल, इसको हम 7 का नाम दे दें, इसको हम एंगल 8 का नाम दे दें। एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना क्या होगा इसके बाद। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो कहना इसे एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8, बट वी नो दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सो वी कैन रिप्लेस एंगल 6 विद एंगल 5। सो लास्ट पर आपका क्या आ गया, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब इसका मतलब क्या है,
एंगल 7, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। इट मीन्स डी पी एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। इट मीन्स डी पी बाइसेक्ट्स एंगल डी and AP is the extended version of AD and BP also. So AP bisects angle D also. हो गया प्रूफ। अब इसका फोर्थ पार्ट, टू प्रूफ। फोर्थ में टू प्रूफ क्या करवाना है हम एक बार पिछले स्लाइड से देख लेते हैं। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमने ये बताना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो ये तो बाय CPCT हो गया, BP इज इक्वल टू CP है, ये हमने किया हुआ है। ये देखो ये तो हो गया बाय CPCT। अब हमने बाय CPCT ये भी प्रूफ करवाया है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यस, बट अब प्रूफ क्या करवाना है, 3 and 4 बोथ आर 90 डिग्री। सो इसका प्रूफ देखो बहुत ईजी है, 2 लाइनों में प्रूफ हो जाएगा इसका। वी नो दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। कहाँ पर प्रूफ करवाया, फ्रॉम सेकंड पार्ट, सेकंड में प्रूफ करवाया ना हमने ये वाला। सो एंगल 3 एंड एंगल 4 दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, ये लीनियर पेयर बनाएंगे। इट मीन्स 2 टाइम एंगल 3 180 आ जाएगा। हमने एंगल 4 को एंगल 3 के साथ रिप्लेस कर दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 3 180। सो 3 प्लस 3 2 टाइम एंगल 3 बन गया। It means angle 3 is equal to 180 divided by 2, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। सो एंगल 3 is equal to angle 4, both are 90। So AP is a perpendicular bisector of BC। This is all about the first sum। ये हमारा फर्स्ट सम सॉल्व हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप प्लीज़ अपना डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, सो हम उसको और अच्छे से एलेबोरेट कर देंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो। सो नाउ सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल A आएगा। अब इसका प्रूफ देखो कैसे करना है हमने। मैं भी आपको जल्दी प्रूफ समझा देता हूँ। अगर आपका कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। हम पहले लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। सो इसी के साथ हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC। इसका मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ये देखो AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। सो अब हम 2 ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ये मैं ट्रायंगल यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। जो ट्रायंगल हमने कंसिडर करनी है, दिस ट्रायंगल एंड अनदर ट्रायंगल दैट वी आर टेकिंग, दैट वन इज दिस। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो वो क्या रहा है, AD तो आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखो ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट है ये वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ गया, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में एंड इस ACD ट्रायंगल में देखो AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 90 डिग्री का हो गया। एंगल 1 ये रहा हमारा, एंगल 2 ये रहा, ये 90 डिग्री का हो गया। एंड AD दोनों में कॉमन आ गया, ये मैंने आपको बोला था ना, ये वाली साइड कॉमन आ रही है, ओके। सो बाय RHS रूल लग गया। RHS रूल कैसे लगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90,
ये राइट एंगल बन गया आपका, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। इसके ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी और राइट एंगल के एडजेसेंट साइड जिस पर राइट एंगल बन रहा है वो साइड आ गई। सो बाई RHS रूल ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। सो बाई CPCT this whole BD and this CD are equal. It means AD bisect BC। इतना क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड पार्ट प्रूफ क्या करवाना है, दिस AD bisects एंगल A एज वेल। सो हमने ऊपर प्रूफ करवा दिया ABD एंड ADC आर इंग्रुएंट, फर्स्ट में प्रूफ करवाया है। सो वहाँ से बाई CPCT हमने इसको एंगल 3 का नाम दे दिया, इसको एंगल 4 का नाम दे दिया। अब हमारे पास 3 और 4 भी इक्वल आ गए, तो इट मीन्स AD आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल A। इतना आपको क्लियर है। अब देखो ये सेकंड सम में क्या हो रहा है, थर्ड सम में हमारे पास जो गिवन है AB इक्वल टू PQ, AM इक्वल टू PN, BC इक्वल टू QR। तो प्रूफ हमने क्या करवाना है, ट्रायंगल ABN एंड PQN आर कंग्रुएंट। तो पहले हम प्रूफ करवाएंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द BN एंड द QN। सो व्हाइल वी आर राइटिंग द रिलेशन बिटवीन दिस, वी राइट हियर BC is equal to QR, that is given. So half of BC is equal to half of QR. So half of BC means अगर AM, ये वाली AM मीडियन है तो ये पूरी की पूरी BC को बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू BC, तो BM इज इक्वल टू MC आएगा। सिमिलरली अगर PN मीडियन है तो ये QR को बाइसेक्ट करेगा, सो QN इज इक्वल टू RN आएगा। इतना क्लियर हुआ आपको। सो BM इज इक्वल टू QN आ जाएगा यहाँ से। सो नाउ इन ट्रायंगल ABN, मैंने ABN ट्रायंगल नीचे बना ली, ये वाली ट्रायंगल, एंड PQN भी ट्रायंगल मैंने नीचे ड्रॉ कर रखी है। इनमें अब क्या हुआ, AB इज इक्वल टू PQ एंड AM इज इक्वल टू PN, ये हमें गिवन था। BM इज इक्वल टू QN हमने प्रूफ करवा दिया। हमने ये कंडीशन लिख दी, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, BM इज इक्वल टू QN हमने प्रूफ अबव करवाया हुआ है, AM इज इक्वल टू PN ये भी हमें गिवन है। सो बाय साइड रूल ऑफ कंग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कंग्रुएंट होगी। कंग्रुएंसी का साइन आएगा यहाँ पर। अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गई हैं तो बाई CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या करवाना है, पूरी की पूरी ट्रायंगल, ये होल ट्रायंगल जो अभी सारी ट्रायंगल को मैं शेड कर रहा हूँ और ये सारी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करवाना है। तो AB इज इक्वल टू PQ ये आपका गिवन में आ जाएगा। B एंगल इज इक्वल टू Q एंगल, ये हमने फर्स्ट में प्रूफ करवाया हुआ है बाई CPCT। ये देखो इसका यूज़ कर लिया हमने डायरेक्ट यहाँ पर। सो BC इज इक्वल टू QR, थर्ड कंडीशन भी हमें गिवन है। सो बाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कंग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होगी। अप टू हियर एनी डाउट? नो डाउट। सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट सम। सो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है DE एंड CF आर टू इक्वल, दीज आर द टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। वी हैव टू प्रूव द ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। सो हम बाय RHS रूल ये प्रूफ करवाएंगे। सो हमने जो पहले गिवन है वो लिख लिया। अगर एल्टीट्यूड हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 ये वाले नीचे वाले एंगल 90 के आ जाएंगे। हमने ना ऊपर वाले एंगल नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? क्योंकि हमें AC और AB के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमने उसको इक्वल प्रूफ करवाना है। तो जिस चीज़ को इक्वल प्रूफ करवाना होता है ना उसको हम यूज़ नहीं कर सकते प्रूफ में।
सो हम दो ट्रायंगल ले ली, एक तो ये वाली नीचे वाली ट्रायंगल आ गई, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली, और दूसरी ये वाली सॉरी। क्लियर। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हुआ, बी इज इक्वल टू सी एफ हमें गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 ये भी गिवन है, बी सी साइड दोनों में कॉमन आ रही है। अब देखो एंगल 1 ये हमारा एंगल 1 है, इसके ऑपोजिट ये बी सी है, इट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज बन गया। सिमिलरली एंगल 2 के ऑपोजिट भी बी सी है, तो ये इसका भी हाइपोटेन्यूज बन गया। इट मीन्स बाय RHS रूल्स ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB दे बोथ आर कंग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो बाय CPCT एंगल B एंड एंगल C इक्वल आ जाएंगे। अगर एंगल B एंड एंगल C दोनों इक्वल हैं, हमें पता है इनके ऑपोजिट साइड्स, एंगल B के ऑपोजिट AC आएगी, एंगल C के ऑपोजिट AB आएगी, ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। इनका रीजन क्या आएगा, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो आपकी ट्रायंगल क्या बन गई, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन गई। यही हमने प्रूफ करवाना है। नेक्स्ट सम देखो, हमारे पास एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल गिवन है जिसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंड हमने शो करवाना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब ये विदाउट कॉन्ग्रुएंसी भी सम हो सकता है, बट यहाँ पर हम RHS रूल का यूज़ करते हुए इसको प्रूफ करवाएंगे। सो जो हमें हमारे पास गिवन है हमने वो लिख लिया, एंगल जो हमारे पास गिवन है हमने वो लिख लिया, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल एंड AB इज इक्वल टू AC। अब AP हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये साइड परपेंडिकुलर है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ईच 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमने जो प्रूफ करवाना है इसका तो हम यूज़ नहीं करेंगे, नॉट यूज है ना, तो हमने ट्रायंगल लिख ली ABP एंड ACP। अब इसमें AP इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC। इन ट्रायंगल ABP एंड ACP AB इज इक्वल टू AC ये हमें गिवन है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 इज आल्सो गिवन, एंड दिस साइड दिस इज अ कॉमन साइड फॉर ऑल टू ट्रायंगल्स, दैट इज कॉमन। अब ये कॉमन आ गई। अब देखो एंगल 1 के ऑपोजिट AB है, हमने यूज़ करी है 90 डिग्री के इक्वल, 2 के ऑपोजिट AC है, ये भी हमने यूज़ करी है। सो बाय RHS रूल ऑफ कंग्रुएंसी द ट्रायंगल ABP कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल ACP, सो बाय CPCT दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यही हमने प्रूफ करवाना था, प्रूफ करवा दिया। सो स्टूडेंट्स आपका 7th चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है 7th चैप्टर में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट अपना शेयर कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट विद इन एप्रोप्रिएट टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स।